Hello students. Today we will discuss our next topic, that is decomposition reaction. Okay, or double decomposition. Okay, so what I told you in decomposition, what I told you students, in decomposition reaction, a substance will be dissociated into two or more substances. Okay, already we have studied some example like decomposition of carbonate. Okay, decomposition of carbonate, decomposition of hydroxide. Okay, yesterday I told you in the live class na. Similarly, decomposition of nitrate, it was very important students. One question you will get in your final examination from nitrate na, in which brown gas was released, NO2. Already I have told you. Okay, so today we will discuss what are double decomposition. So double decomposition mean there will be two decomposition. So as you are looking here, what AB, a compound is there and it is reacting with CD. It is reacting with CD. So what will happen student? There will be a dissociation of AB as well as there is a dissociation of CD. So two dissociation will be there. Okay. Similarly, you can say it is the example of double displacement. What student? Double displacement student. How? First of all, we will discuss single displacement. Mean, already I have told you, zinc is reacting with iron sulfate, in which I told you iron sulfate is a green substance. Okay, but when you will react it with zinc, sometime it will be changed into colorless. बताया था कि नहीं बताया था मैंने आपको? ठीक है ना? तो here is a displacement of iron by zinc. This is single displacement. But suppose you have NaCl and reacting it with AgNO3. So what will happen? Sodium will replace silver. This silver. And silver will replace sodium. Mean two displacement. After one displacement, AgCl will be formed. After another displacement, NO3 will be formed. Okay, so this example we have discussed in precipitation reaction also. Okay, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया. ऐसा ही कुछ होता है आपका डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में. तो डबल डिकम्पोजिशन में ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ए और बी टूट जाएगा, सी और डी टूट जाएगा. सो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट? ए एंड बी, दिस वन, बी एंड सी विल रिएक्ट, यानी कि सी बी. ए एंड डी विल रिएक्ट, मतलब ए डी. तो देखो ये लाइन लिखी हुई है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आई होप आपको समझ में आई होगी. वन मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट. सपोज यू हैव HCl. व्हाट स्टूडेंट? यू हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड and you are reacting it with sodium hydroxide. This is what student? This is acid. And this is what student? This is base. So if acid will react with base, so what will happen student? Salt, NaCl, as well as H plus OH will react, it will form water. So here double displacement as well as double decomposition. और बच्चों ये रिएक्शन साथ में कहलाएगी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. What student? Neutralization, because acid is reacting with base, result in the formation of salt and water. So this is neutralization reaction. तो देखो आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन NaCl एंड सिल्वर नाइट्रेट. ओके, ये मैंने आपको अभी एग्जाम्पल करवाया कि नहीं करवाया, जिसमें AgCl एंड NaNO3 was formed. Okay, so these are the example. So again we will discuss precipitation reaction. Precipitation में one more example student. I have taken barium chloride. What is student? Barium chloride. And I am reacting this barium chloride with sodium sulfate. So what will happen? Double displacement, or you can say decomposition here and here. So ये जो दो हिस्से हैं, they will react with each other. NaCl will be the product, 2NaCl, and this barium will react with this sulfate and you will get
प्रेसिपिटेट्स मीन जो इनसोलेबल सब्सटेंस होगा वो आपका बेरियम सल्फेट यहाँ बन जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिकम्पोजिशन और precipitation reaction. So question may be write a example of double displacement reaction in which precipitates are formed. So you will write this example. या वो मैंने पीछे जो आपको कौन सा वाला बताया था, कौन सा बताया था, NaCl और सिल्वर नाइट्रेट का। वन मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप ये देख सकते हो, कॉपर सल्फेट विल रिएक्ट विद H2S. So what will happen? Copper sulfate will react with H2S. So student what will happen? CuS, मतलब ये दो हिस्सों में अलग हो जाएगा एंड इट विल बी इन द टू पार्ट. तो H2SO4 और CuS विल बी द प्रोडक्ट. तो ये लिखा हो देखो CuS H2SO4 एंड CuS हैव्स द ब्लैक प्रेसिपिटेट. कैसे प्रेसिपिटेट्स होते हैं स्टूडेंट्स? ब्लैक प्रेसिपिटेट होते हैं. तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की देखो आप दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. फर्स्ट, व्हेन टू सॉल्यूशन आर मिक्स्ड तब प्रेसिपिटेशन होगा, या व्हेन गैस इज बबल्ड थ्रू सॉल्यूशन. देखो कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन था, एक्वस था, लेकिन व्हेन गैस इज बबल्ड देन वी गेट ए प्रेसिपिटेट. ठीक है ना. ऊपर देखो कॉपर बेरियम क्लोराइड वाज एक्वस, सोडियम सल्फेट वाज एक्वस, बोथ वर एक्वस, देन वी गेट सॉलिड. तो ये दो तरह से बन सकते हैं. फर्स्ट व्हाट स्टूडेंट? व्हेन सॉल्यूशन विल बी मिक्स्ड, व्हेन गैस विल बी मिक्स्ड. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट. देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. यहाँ मैंने आपने बुक में HCl ले रखा है, मैंने अभी क्या लिया था? NaCl. एंड आई रिएक्टेड दिस HCl और NaCl विद सिल्वर नाइट्रेट. तो AgCl के प्रेसिपिटेट बने कि नहीं बने? ठीक है ना. तो दीज आर द एग्जाम्पल. अभी ये देखो आप बेरियम क्लोराइड, व्हेन यू विल कम टू द स्कूल ना, देन आई विल शो दिस एक्टिविटी इन द लेबोरेटरी ऑल्सो. Okay, so barium chloride, we will take barium chloride and we will add H2SO4 in the test tube. So what will happen? HCl. ठीक है ना. प्लस दिस बेरियम विल रिएक्ट विद दिस सल्फेट. और मैंने अभी ऊपर भी बताया थोड़ी देर पहले, आप रिवर्स करके देखो वीडियो को. सो बेरियम सल्फेट इज ए इनसॉल्युबल सब्सटेंस, सो यू विल गेट प्रेसिपिटेट. ओके. तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. फर्स्ट इज सपोज यू हैव FeS फेरस सल्फेट, लेकिन हम कुछ ऐसी रिएक्शन करा रहे हैं जिसमें अब गैस रिलीज होगी. ओके. नाउ प्रेसिपिटेट्स विल नॉट बी फॉर्म्ड, वी आर रिएक्टिंग दिस रिएक्शन इन विच गैस विल बी रिलीज्ड. ओके. सो व्हेन फेरस सल्फाइड इज रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, सो व्हाट विल हैपन? H2S गैस, जैसे काले नमक में से होती है ना बच्चों, हाँ इस तरह की गैस यू विल फील. सो दिस इज फेरस सल्फेट. ओके. नेक्स्ट, after completing this, now we are coming here and neutralization reaction. So what are neutralization reaction? This is very important students. Neutralization reactions are those reactions in which a base will react with acid and to form salt and water. क्या होगा? acid will react with base, result in the formation of salt and water. Is it clear? So student, आप यहाँ पर उनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे. सो हेयर यू कैन से जिसमें आयंस रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब यू कैन से व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यू विल से इन विच H आयन विल रिएक्ट विद OH आयन and will form water. Simple definition. Another definition student, what? In which H positive will react with OH negative and will form water is known as neutralization reaction. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? OH is reacting with H, result in the formation of water. हालांकि ये भी आयन रिएक्ट कर रहे हैं, सोल्ट बन रहा है, बट H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इट मे बी द डेफिनेशन. ओके. देखो ये फाइनल आयंस ये लिखे गए हैं. सो इट इज़ द फाइनल रिएक्शन. ओके. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टूडेंट यू विल कीप इन माइंड ऑलवेज हीट इवॉल्विंग, हीट इवोल्यूशन इज देयर. हीट इवोल्यूशन मीन गर्म हो जाएंगे वो, तो उनको हम आगे पढ़ेंगे, उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. इन 8th क्लास यू स्टडीड exothermic reaction in which heat will be released. Okay, so these are always exothermic reaction. Some example are also there. KOH HNO3 nitric acid. Student, this is what? Nitric acid. This is KOH. KOH is what? This is base. So look here student, what will happen? This OH will react with this H, result in the formation of water, and potassium will react with nitrate. KNO3 will be the product. Okay. Next student, next is another example student, base NaOH H2SO4 sodium sulfate water.
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, HCl, अमोनियम क्लोराइड? हु विल टेल? यू विल राइट इन द कमेंट बॉक्स स्टूडेंट। ये मैंने आपको लाइव क्लास में ये एक आपको एग्जाम्पल बताया था, किसी एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन का है ये, ठीक है ना। आप रिएक्शन को ऑब्जर्व करो, और जब मैंने चैप्टर शुरू किया था उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताए थे, तो उसमें मुझे बताएंगे ये रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ी है। ओके, आई विल चेक हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल राइट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए इनसॉल्युबल बेस विद एसिड। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा बेस लेंगे जो सॉलिड होता है। कैसा होता है? इनसॉल्युबल बेस है, और उसको हम किसी लिक्विड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्ट बन जाता है कोई। खैर, आपको इस तरह का कोई स्पेशल लर्न करने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड नाउ इज हाउ न्यूट्रलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट टू अस। हाउ न्यूट्रलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। ओके, सो जैसे आपको पता होगा कि गर्मियों में हालांकि चल रही हैं, आपको पता है कि कोई बी आपको काट के चली जाती है। बी मतलब कोई भी ततैया, ओके, वो आपको क्या करती है? काट के चली जाती है। सो यू विल कीप इन माइंड स्टूडेंट, इन द स्टिंग ऑफ बी, डंक में क्या होता है? फोमिक एसिड इज देयर। यू विल कीप इन माइंड व्हाट स्टूडेंट? फोमिक एसिड इज देयर इन द बी स्टिंग। ओके, स्टिंग में बी के उसमें क्या, कौन सा एसिड चला जाता है? स्टिंग। सपोज दिस इज योर बॉडी, हैंड है, और ये कोई बी आई एंड बी ने आपको काट लिया, मीन फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर चला गया। क्या चला गया आपकी बॉडी के अंदर? एसिड चला गया। तो इमीडिएटली व्हाट यू विल डू, यू नीड टू अप्लाई सम बेस। यू नीड टू अप्लाई सम बेस, बिकॉज बेस विल रिड्यूस और विल न्यूट्रलाइज द एक्शन ऑफ एसिड। तो आपके हाथ में स्वेलिंग नहीं आएगी। तो आप कौन सा बेस फटाफट से यूज़ करेंगे? खाने का सोडा। फटाफट से आप खाने का सोडा बच्चों क्या कर सकते हो? आप इमीडिएटली उसका पेस्ट पानी में घोलो और वो लगा दो हाथ पे जहाँ पे काटा है। बेकिंग सोडा, ओके, बेकिंग सोडा इज व्हाट? खाने का सोडा। ओके, एज वेल एज सेलेक्ट लाइम, चूना, ठीक है ना। चूना भी आप उस पर फटाफट से क्या कर सकते हो? लगा सकते हो। बोथ विल बी इफेक्टिव, बोथ विल न्यूट्रलाइज द व्हाट? स्टिंग ऑफ बी। ओके, and you will keep in mind that which acid is present in the honey bee or a simple bee, so you will say formic acid. Okay, sometime you said acidity हो रही है, बोलते हैं ना आप, कई बार कहते हो कि acidity हो रही है। so what will happen to the acidity student? what will happen mean आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा HCl बन गया है। at the ball of your stomach ना, HCl is released by the wall of your stomach. स्टमक की जो वॉल होती है, पेट की जो लेयर है, इट एक्चुअली इट क्रिएट आउट द HCl। अगर ये ज़्यादा HCl रिलीज कर देती है तो आप कहते हैं आपकी स्टमक में क्या हो गया है? एसिडिटी हो गई है। और ये HCl बनना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज योर फूड विल नॉट बी गेट डाइजेस्ट। ओके, सो हम क्या करेंगे? वी विल टेक खाने का सोडा, दैट इज बेकिंग सोडा। ओके, सो व्हाट इज बेकिंग सोडा? इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Okay, so this will react with the HCl and will form NaCl. This Na will react with this Cl. Okay, CO2 will be released. डकार आएगी आपको ना, CO2. Okay, and this H will react with water, oxygen, and it will form H2O. So न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। अब आपकी बॉडी में, स्टमक में एसिड नहीं है। और इवन समटाइम यू यूज्ड इनो, सो इनो ऑल्सो हैज़ बेस लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड, as well as baking soda. Sodium hydrogen carbonate is the another name of baking soda. तो आप उसको भी क्या कर सकते हो? इनो को भी आप इसीलिए यूज करते हैं। ओके, सो 2 applications are there of neutralization reaction. Now next is, yes, this one, sorry, one more application. C, acid that is accidentally spilled on your clothes. आपके कपड़ों पे मान लो कोई लैब में काम कर रहे हो आप, ओके, होपफुली यू विल कम टू द 10th class, then 11th class and you will walk in the laboratory. ओके, सो सपोज करो लैब में काम करते हुए some acid has poured on your clothes, so what you will do? Immediately you will pour weak base. वीक बेस डालना होता है, स्ट्रॉन्ग तो नहीं डालते,
because if you will add a strong base, so what I said, these reaction are exothermic, mean heat will be released, और वो heat ही कपड़े को जला देगी, so you will use weak base. Okay, similarly you will do when honey bee or simple bee will bite at your hand, so what you will do, you will apply weak base like NaHCO3. This is weak base. You can't use NaOH, this is strong base student, because exothermic reaction will produce heat और आपको हाथ भी जल सकता है. Okay, so weak base. D application student, what is D application? If the soil इज समवॉट एसिडिक, समटाइम्स सोयल क्या होती है, एसिडिक हो जाती है, तो उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उसमें क्रॉप जो होती है वो आपकी अच्छी नहीं होती, वो अनफेवरेबल हो जाती है. उसके अंदर कौन से कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्रॉप को हेल्प करते हैं, वो बैक्टीरिया भी मर जाते हैं. इसलिए उसके अंदर स्लैग्ड लाइम जो होता है सोयल के अंदर, फिर वो मिलाया जाता है फर्टिलाइज़र के द्वारा. फर्टिलाइज़र में स्लैग्ड लाइम भी होता है, ठीक है, डायरेक्ट भी मिलाया जाता है, ताकि वो एसिड जो आपकी उस सोयल में आ गया है वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए. ओके, और वो आपका क्या हो जाए, सोयल न्यूट्रल रहेगी तो उसमें सब कुछ अच्छा होगा. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, गिव 4 एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो आपको ये 4 एप्लीकेशन देनी है जो अभी मैंने आपको बताई है. ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक और सम एक्सरसाइज ऑल्सो, और इवन वी कैन स्टार्ट न्यू चैप्टर. ओके, सो इफ एक्सरसाइज विल बी लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन. लेट्स स्टूडेंट, जो आज हमने पढ़ा है, व्हाट आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें गैस इवोल्व हो रही है. तो देखो कौन सा बताया था मैंने आपको, जिसमें गैस इवोल्व हो रही थी. लुक हियर, फेरस सल्फाइड वाज रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड. सो व्हाट हैपन, काले नमक वाला जो मैंने आपको बताया था, H2S गैस, FeSO4, फेरस सल्फेट. सो दिस इज द गैस, और डबल डिस्प्लेसमेंट है, एक ये टूटा है एक ये टूटा है. ठीक है, ओके. तो आपने थोड़ा सा ये क्या करना है, ध्यान करना है. ओके, सो लुक हेयर, बी, ए रिएक्शन ऑफ AB प्लस CD गिव AD प्लस CD इन्वॉल्व. इसको BC कर लें आप, BC, सॉरी देखता हूँ क्या कर लें, कुछ ना करें, इसको B करें, CD की जगह क्या करें, B करें. ओके, सो वो कह रहे हैं इसमें क्या होगा, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा. केमिकल चेंज तो हो रहा है, बिकॉज वी आर गेटिंग न्यू थिंग. डिकम्पोजिशन ऑफ AB एंड CD, यस हो रहा है डिकम्पोजिशन. एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयन इज देयर, यस एक्सचेंज भी है. और कॉम्बिनेशन ऑफ AB एंड CD, कॉम्बिनेशन ऑफ AB एंड CD, नहीं कॉम्बिनेशन तो नहीं है ना, ये है, ये भी डी का एक्सचेंज ऑफ आयन ऑफ AB एंड CD. सिमिलरली डिकम्पोजिशन ऑफ AB एंड CD, बोथ विल बी करेक्ट, दोनों आपके ये ठीक हो जाएंगे. ठीक है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ AB एंड CD, सिमिलरली एक्सचेंज ऑफ आयन ऑफ AB एंड CD. हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ना, बोथ विल बी द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस. अच्छा चलो चलते चलते ये और क्वेश्चन कर लेते हैं. रिएक्शन, दिस इज अ व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज स्टूडेंट एसिड, दिस इज सॉल्ट. सो हेयर व्हाट यू गेट, सॉलिड. सॉलिड का मतलब क्या हो गया, आपके पास एक तो इसके 2-3 हैं. ये रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, एब्सोल्युटली है. यहाँ से 2 पार्ट में टूट रही है. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं है ये, बिकॉज क्योंकि ये सॉल्ट है, ये बेस नहीं है, ये तो एसिड है. H2SO4 इज एसिड, H2SO4 is acid, but BaCl2 is not base. So this is not the example of neutralization. डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, क्योंकि ये डबल डिकम्पोजिशन है. डबल यहाँ से ब्रेक हो रहा है, ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है. ओके, तो डबल डिकम्पोजिशन दे नहीं रखी, सिंपल डिकम्पोजिशन दी हुई है, मतलब ये भी नहीं होगा. ये दे रखा डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. सो आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास. ओके, सो जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं यू विल राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड नेक्स्ट फ्राइडे वी विल डिसकंटिन्यू आवर टॉपिक. ओके, यहीं से हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, और हो सकता है हम अगला चैप्टर शुरू करें. ओके, गुड बाय.